اور یار اتنی غلامی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جناب ماضی کی حکومت نے جو یورپی یونین کو للکارا تھا آج ہم بھگت رہے ہیں. بھائی یورپی یونین تمہارے باپ ہے؟ میں نہیں چاہتا دشمنیاں کرو ان ملکوں کے ساتھ. امریکہ کو یورپ کو بھائی بناؤ نا, باپ تو نہ بناؤ. یہ حال ہو چکا ہے. جب اوپر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پوری قوم کو بھکاری بنا کے رکھ دیتے ہیں. ملیشیا تمہیں 70-80 روپے کا, انڈونیشیا تمہیں تیل دینے کو تیار ہے تمہیں, اور عرب کنٹریز میں سے کئی ایسی ہیں جو آدھے سے بھی آدھے داموں پہ تیل دینے کو تیار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ باپ ناراض ہوتا ہے. جب آپ کے بزنس اس باپ کی گود میں چل رہے ہوں, جب آپ کے بچوں کی جائیدادیں اور ان کی رہائش وہاں پر ہو, تو پھر آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے. آپ ان کے بارے میں نہیں بول سکتے. ان سب کے اکاؤنٹ چیک کرو, ان کے بچوں کے اکاؤنٹ چیک کرو کہ 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ کے کیمرے ایم پی اے کی تنخواہ ہوتی ہے, تو یہ اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آگے؟ باپ کا مال تھا. سڑکیں تم لوگوں کی آج بھی بلوچستان میں زمین پہ نظر نہیں آتی لیکن کاغذات میں ہوتی ہیں. وہ اربوں خربوں روپے کہاں پر جاتے ہیں؟ تجربہ ان کے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملک لوٹنے کا تجربہ ہے, ملک کا دام لگانے کا تجربہ ہے, اور یہ کیسے غلامی کر لیتے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک ملک کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پر اس نے کہا کہ ظلم کیا اپنی عوام پہ, اور جب پارلیمنٹ میں شور مچایا گیا کہ جناب تم عوام کو پھر قابو کیسے کرو گے, لوگوں کو قابو کیسے کرو گے, اس نے کہا کل جواب دوں گا. وہ مرغی لیا اور اس کے پڑ ادھیڑنے لگ گیا. وہ چلاتی رہی, روتی رہی. لوگوں نے کیا کر رہے ہو؟ کہتا خاموشی سے دیکھو. چلاتی رہی اور وہ پڑ ادھیڑتا رہا. اتنے میں مرغی برہنہ ہوگی, اس نے پٹک کے زمین پہ مارا. وہ روتی رہی اور پورے پارلیمان میں شور مچا. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ. اس نے چلنا شروع کیا اور جیب سے دانے نکال کے پھینکنا شروع کر دیے. مرغی پیچھے پیچھے جاتی جاتی پھر اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئی جہاں وہ بیٹھا. یہ دنیا میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے مارا جاتا ہے, ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے, اور پھر ہمارے ان حکمرانوں کے آگے ہڈی پھینک دی جاتی ہے, اور یہ پھر دم ہلاتے ہلاتے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, جانتے ہوئے بھی کہ یہ مغرب جس نے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا ہم لوگوں پہ, کون سا ظلم ہے. اور پھر آپ یہ دیکھو یار, چائنا جیسا دوست جس پہ ہمارا بھرم ہوا کرتا تھا, اس چائنا نے پورے 15-20 ممالک کی 3 کانفرنسز بلائی, اس میں ہمیں نہیں پوچھا. یہ فارن پالیسی ہے تم لوگوں کی. روس نے جواب دینا شروع کر دیا ابھی تو ہمیں. افغانستان جس کو آزادی ہماری وجہ سے دوبارہ ملی, وہ ہم لوگوں پہ جان چھڑکتے ہیں. جن لوگوں کی وہاں حکومت ہے, $90 پر ٹن کول دیتا ہے وہ. شہباز شریف نے کہا ہم افغانستان سے خریدیں گے, اس نے ریٹ بڑھا کے کہہ دیا $200 پر ٹن دیں گے. کیوں کر رہے ہیں افغانی ہمارے ساتھ ایسا؟ کیونکہ وہ تم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ تم لوگ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے خلاف ہم 20 سال لڑتے رہے ہیں. ملکی حالات ہیں جو, ان حالات کو دیکھ کے آپ اس حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار میں کیا کہوں اس حکومت کے بارے میں. ایک بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے, وہ کرایہ دے مکان کا, بچوں کی فیسیں پے کرے, اپنے وہ ہونے حال بچے کو اس کے لیے دودھ پورے کرے, پیمپر پورے کرے, یا خودکشی کر کے مر جائے. کیا کرے بیچارہ؟ بڑے سفید پوش لوگ ہم نے دیکھے سڑکوں پہ آ گئے, بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. بڑے ہم لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے جن کا تصور میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ لوگ آ کے سڑکوں پہ بھیک مانگیں گے. یہ حال ہو چکا ہے. جب اوپر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پوری قوم کو بھکاری بنا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ اس حکومت کے بارے میں آپ لوگوں کو میں کس منہ سے بتاؤں کہ 5 سال یہ فوج کو گالی دیتے ہیں, پھر آ کے بوٹ پالش کرتے ہیں. 5 سال یہ ملک کے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں, پھر آ کے ان کے پہلے گالیاں دیں گے, ان کے کیچڑ اچھالیں گے, ایک سپاہی کو گالی دیں گے, پھر جب رجیم چینج ہوتی ہے آ کے بوٹ پالش کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان میں کوئی حیا, کوئی شرم, کسی اس طرح کے نام کی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. اور پھر مجھے یہ بتائیں, ان کے اتحادیوں سے میں پوچھتا ہوں, نام میں نہیں لوں گا, 5 سال اسلام خطرے میں ہوتا ہے. 5 سال تم لوگ کہتے ہیں ایجنٹ ملک پہ قابض ہو گئے, 5 سال تم لوگ کہتے ہو امریکہ کی غلامی کرنے والے ملک کے اوپر قابض ہو گئے. بتاؤ تو صحیح, اب تو تم لوگوں کی حکومت آ گئی ہے, پھر کیوں بولتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو تم لوگوں کی حکومت آ گئی ہے. اب کیوں سودی نظام کے خلاف جب شریعت کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے پھر اسٹیٹ بینک جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دیتے ہیں؟ اب کیوں خدا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے پہ تلی ہوئی ہے یہ حکومت؟ ظاہر ہے جو سود کرتا ہے وہ تو ڈائریکٹلی اعلان جنگ کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہے. تو پھر اب اسلام خطرے میں نہیں ہے. اب اسلام کے ٹھیکیدار جو بننے بیٹھے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کیا آپ کو نظر آئے ہیں کہیں؟ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ نکالی تھی نون لیگ نے بھی, ایک اس شخص نے بھی نکالی تھی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے کون. ایک شخص جس کی لاٹری لگ گئی تھی اور اسے
विरसे में, तोहफे में पार्टी की चेयरमैनी मिल गई थी। एक शख्स जो कहता था कि बारिश आता है तो पानी आता है और ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, ऐसा शख्स आज कहाँ नज़र आता है? कहीं पर नज़र आ रहा है महंगाई मुकाओ मार्च पे? कहीं नज़र आ रहा है जो कहे कि जी बड़ा लोगों के साथ जुल्म हो गया है? जिसको तब महंगाई नज़र आती थी, आज से 6 महीने पहले महंगाई नज़र आ रही थी, लेकिन थरबारकर में बिलखते बच्चे उसे आज भी नज़र नहीं आ रहे। जिसे पहले महंगाई नज़र आ रही थी, लेकिन सिंध में खुदकुशी करते हुए आवाम उसको आज भी नज़र नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है ये लोग कहाँ मर गए हैं? सवाल ये पैदा होता है जो लोग कहते थे इस्लाम खतरे में, आज हमें बताओ ना यार, आज तो आप लोग आ गए हो, इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं लेके आ रहे? आज तो आप लोग आ गए हो, आज तो आप लोग उम्रा भी सुना है कि भेस बदल के करने जा रहे होते हैं। ये क्या वजह बनी है कि आप आवाम को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं? ये क्या वजह बनी है कि आप लोग आवाम के सामने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और फिर जब आप लोगों की हुकूमत की बारी आती है तो हुकूमत हासिल करने के लिए आप लोग उसी के गोटे गिटों में बैठे होते हैं, उसी के कदमों में बैठे होते हैं, उन्हीं के बूट पॉलिश कर रहे होते हैं। आप लोगों ने मुझे बताया इतना डीजल कभी दुनिया की तारीख में महंगा नहीं हो यार। 150 रुपये इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं वो उन लोगों ने विद इन 2 वीक्स बढ़ा दिए हैं। लोग बेचारे पैदल सफ़र करने पे जून जुलाई के महीनों पे आ गए हैं। साइकिलें लेना लोगों ने शुरू कर दी हैं, कबाड़ से उठाना शुरू कर दी हैं। सवाल ये पैदा होता है तुम्हारे पड़ोस में ईरान बैठा है 10-12 रुपये फी लीटर के हिसाब से तेल दे रहा है। मलेशिया तुम्हें 70-80 रुपये का, इंडोनेशिया तुम्हें तेल देने को तैयार है तुम्हें, और अरब कंट्रीज़ में से कई ऐसी हैं जो आधे से भी आधे दामों पे तेल देने को तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनसे क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाप नाराज़ होता है। जब आपके बिजनेस उस बाप की गोद में चल रहे हों, जब आपके बच्चों की जायदादें और उनकी रहायश वहाँ पर हो, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है, आप उनके बारे में नहीं बोल सकते। और इनकी ऐशिया देखो जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मैं 4 महीने पहले दुबई में और शारजा में खिताब करने गया पाकिस्तानियों को, जहाँ पर मैं जुमेरा लेक टावर में गया, मैं जगह का भी नाम बता रहा हूँ JLT का, वहाँ पर 4 प्लाजे इन्हीं के समदी साहब के बने हुए थे, मियाँ साहब के, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। 40,000 रुपये एक रात का रेंट है एक कमरे का, और हज़ारों कमरे हैं उधर। करोड़ों रुपए वो एक रात के कमाते हैं। सारे मजदूर जो उधर और वेटर रखे हुए इन लोगों ने, वो बंगाली या हिंदुस्तानी रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को पता ना चल जाए कि क्या गुल खिला रहे हैं, और वो पैसा लंदन में जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं आ रहा। वो इस कौम के पैसे को, हमारे टैक्स के पैसे को, हमारे निचोड़ के हमें ये वहाँ पर लेके गए, वहाँ अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, वहाँ से बरतानिया भेजते हैं, वहाँ अपना ऐशी कर रहे हैं। इनके बच्चे पाकिस्तान में आके पढ़ने को तैयार नहीं हैं। ये इन्होंने आज तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं दिया कि पाकिस्तान में अपना इलाज करवा सकें, उसके लिए भी बाहर दफ़ा होना पड़ता है इन्हें। और सारी तबीयत इनकी ठीक हो जाती है जब ये हुकूमत में आ जाते हैं, शादी ब्याह कराना शुरू कर देते हैं, बच्चों के सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे ये बताएं कि यार किस बेस पे तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ इनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि जनाब हम आ गए दोबारा बूट पॉलिश करने के लिए? तुम्हें पता है, तुम भूल गए हो कि जब LOC पे मेरा जवान शहीद हो रहा होता था तो मस्जिद देओल के साथ मरी में मीटिंग्स कर रहे होते थे, जिन्होंने खुद कुछ धमाके करवाए बलूचिस्तान में यार, जिन्होंने पंजाबियों के, पठानों के, बरावियों के, हज़ारों के गले कटवाए वहाँ पर, तुम लोग उनके साथ मीटिंग कर रहे होते थे। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे जो मोदी साहब हैं उनकी माँ को आमों की पेटियाँ किसने भेजी थी? मियाँ साहब ने भेजी थी। भूल गए हैं कि जनाब मोदी की माँ को जो है वो साड़ी किसने भेजी थी? मियाँ साहब ने भेजी थी। भूल गए कि बगैर वीज़े के मोदी किसकी बेटी की, किसके पोती की शादी में आया, न किसके नवासी की शादी में? मियाँ साहब के। और कब आया? जब कश्मीरियों के गले काटे जा रहे थे, जब LOC पे मेरे जवानों को शहीद किया जा रहा था, जब LOC पे उस पार के कश्मीर पे भी और इस पार के कश्मीर पे भी, वो मकबूजा कश्मीर भी और आज़ाद कश्मीर भी, दोनों तरफ गोलाबारी की जा रही थी हिंदुस्तान की जानिब से। वहाँ पर घरों में कुंडियाँ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती मकबूजा कश्मीर में। उसके बावजूद ये लोग मरासिम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों के, इनके कारोबार उनके साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान आने को ये लोग तैयार नहीं होते। और ये तो मैं कहता हूँ आप लोग लॉ बनाएं, सरकारी मुलाजिम और सीनियर ऑफिसर, ये लोग, इनके बच्चे तब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ें जब तक मैट्रिक में नहीं होते। मैट्रिक करने तक ये किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नैरेटिव आएगा। इनको तो रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त न दी जाए, पहले इनके असासाजात चेक किए जाएं कि यार तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, बेगम के पास पैसा कहाँ से आया, तुम्हारे फ्रंटमैन के पास पैसा कहाँ से आया। उन सब के अकाउंट चेक करो, इनके बच्चों के अकाउंट चेक करो कि 2-2 लाख 2.5 लाख के MNA MPA की तनख्वाह होती है, तो ये अरबों खरबों के असासे कहाँ से आगे? बाप का माल था। सड़कें तुम लोगों की आज भी बलूचिस्तान में ज़मीन पे नज़र नहीं आती, लेकिन कागजात में होती हैं। वो अरबों खरबों रुपए कहाँ पर जाते हैं? और गरीब तो मर गया भाईजान,
गरीब की तो पूछो ही ना। गरीब अब कोई बंदा, मैं कहता हूँ जो एक मीडियोकर होता था ना, मिडिल क्लास, वो भी बेचारा गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। बच्चे रोज़ाना बाप से सवाल पूछते हैं कि अब्बा जी चौथा दिन है, वही सब्ज़ी बन रही है एक ही किस्म की, उसी में पानी घोली जा रहे हो, क्या मामला है? बाप क्या जवाब दे उसे? ये 22 करोड़ अवाम हुकूमत और इनके इत्तेहादियों से पूछती है कि बोलते क्यों नहीं हो हक में मेरे, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या, किस लिए देखते हो उसकी तरफ, कोई रहता है आसमां में क्या? मुझे बताएं, आने से पहले ये कहते थे हमारे पास तजर्बा का टीम है, हमारे पास ऐसी टीम है जो मईशत ठीक कर देगी, तो क्या कहते हैं उस टीम के बारे में? आज वो टीम किधर है? तजर्बा इनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क लूटने का तजर्बा है, मुल्क का दाम लगाने का तजर्बा है। इनके वज़रा और वज़राए आज़म को नंगा करके एयरपोर्ट्स पे चेक किया जाता है, उसके बावजूद उनकी ग़ुलामी करने का तजर्बा है। और ये कैसे ग़ुलामी कर लेते हैं मेरी समझ से बालातर है। एक मुल्क की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर उसने कहा कि जुल्म किया अपनी आवाम पे, और जब पार्लियामेंट में शोर मचाया गया कि जनाब तुम आवाम को फिर काबू कैसे करोगे, लोगों को काबू कैसे करोगे, उसने कहा कल जवाब दूंगा। वो मुर्गी ले आया और उसके पड़ उधेड़ने लग गया। वो चिल्लाती रही, रोती रही। लोगों ने क्या क्या कर रहे हो? कहता खामोशी से देखो। वो चिल्लाती रही और वो पड़ उधेड़ता रहा। इतने में मुर्गी बरहना होगी, उसने पटक के ज़मीन पर मारा। वो रोती रही और पूरे पार्लियामान में शोर मचा। उसने कहा खामोश हो जाओ। उसने चलना शुरू किया और जेब से दाने निकाल के फेंकना शुरू कर दिए। मुर्गी पीछे पीछे जाती जाती फिर उसकी गोद में जाके बैठ गई जहाँ वो बैठा। ये दुनिया में मुसलमानों को बरहना करके मारा जाता है, जलील और रुस्वा किया जाता है, और फिर हमारे इन हुक्मरानों के आगे हड्डी फेंक दी जाती है और ये फिर दुम हिलाते हिलाते उनकी गोद में बैठ जाते हैं, जानते हुए भी कि ये मगरिब जिसने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया हम लोगों पे, कौन सा जुल्म है। और फिर आप ये देखो यार, चाइना जैसा दोस्त जिस पे हमारा भरम हुआ करता था, उस चाइना ने पूरे 15-20 ममालिक की 3 कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, उसमें हमें नहीं पूछा। ये फॉरेन पॉलिसी है तुम लोगों की। रूस ने जवाब देना शुरू कर दिया अभी तो हमें। अफगानिस्तान जिसको आज़ादी हमारी वजह से दोबारा मिली, वो हम लोगों पे जान छिड़कते हैं। जिन लोगों की वहाँ हुकूमत है, $90 पर टन कोल देता है वो। शहबाज शरीफ ने कहा हम अफगानिस्तान से खरीदेंगे, उसने रेट बढ़ा के कह दिया $200 पर टन देंगे। क्यों कर रहे हैं अफगानी हमारे साथ ऐसा? क्योंकि वो तुम लोगों से नफरत करते हैं कि तुम लोग उनकी गोद में बैठे हुए हो, जिनके खिलाफ हम 20 साल लड़ते रहे हैं। यार क्यों कौम को बेच रहे हो? कौम कहती है यार चलो हम भूख प्यास से मर जाते हैं लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। तुम लोग भूख प्यास से भी मार रहे हो, तुम लोग गुलामी भी कर रहे हो। तो समझ से बालातर है, लोगों का मोराल डाउन हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक शायद कोई इस गुलामी से निजात नहीं दिलवा सकेगा। जो बंदा बात करने के लिए उठता है, किसी को आफिया सिद्दीकी की तरह उठा के ले जाते हैं, किसी को अहमल कांसी की तरह उठा के ले जाते हैं। बोलेगा कौन? डॉक्टर इसार अहमद के सामने तो ये फ्रॉड करते थे, जाके उनके गोडों पे हाथ रख के कहते थे हम आएंगे तो सूद का निज़ाम तहस नहस कर देंगे और इस्लामी शरीयत ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाद में उसकी कॉल तक अटेंड नहीं करते थे ये लोग। डॉक्टर आफिया की माँ के साथ बैठ के रोया करता था नवाज शरीफ के, मैं लेके आऊँगा। दूसरी बार हुकूमत में, तीसरी बार हुकूमत में आ गए, किधर है? नाम लेने वाले ही कोई नहीं है। और यार इतनी गुलामी के तुम लोग कहते हो कि जनाब माजी की हुकूमत ने जो यूरोपीय यूनियन को ललकारा था, आज हम भुगत रहे हैं। भाई यूरोपीय यूनियन तुम्हारे बाप है? मैं नहीं चाहता दुश्मनियां करो उन मुल्कों के साथ। अमेरिका को, यूरोप को भाई बनाओ ना, बाप तो ना बनाओ। भाई और बाप में फर्क होता है। बहुत शुक्रिया।